Hello everyone, welcome in Science and Maths Club. Today in this video we will describe about nutrition in animals. Various steps in animal nutrition and different ways of taking food by animals. This is chapter 2, Nutrition in Animals. Students, in this chapter you will learn about that different plants prepare their own food because they are autotrophs, and they prepare their own food with the help of the process called photosynthesis. But we human beings and animals cannot make their own food. That's why we are heterotrophs. We depend on plants for our food. So how can we consume our food and why do we need our food? Okay, what is the function of the food? You will study in this video. So first of all, animal nutrition. What is animal nutrition? You know that we human beings and animals obtain our food from the plants and also animals. So if we take our food from the plants directly, so this is called direct way. And if we obtain our food from the animals, so this is called indirect way, because we eat those animals and those animals eat the plant. So this is indirect way of feeding. We know that all human beings and animals eat plants and animals both, so that's why we are called omnivores. So if an animal take food in the form of solids, अगर कोई एनिमल फूड को सॉलिड फॉर्म में कंज्यूम करता है, सो दिस इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन. So now, what are the different steps of nutrition? Different steps in animal nutrition. So students, there is total 5 steps or 5 ways, 5 different steps of animal nutrition. So whatever the food we eat, that food undergoes in 5 steps. First is ingestion. Second is digestion. Third is absorption. Fourth step is assimilation and fifth is egestion. So what is ingestion? Students, first step is ingestion. Ingestion means taking food. Taking food or eating. Okay, so first is ingestion, intake of food. Second step is digestion. Digestion means जो भी फूड आप कंज्यूम करते हो उसका डाइजेस्ट हो जाना. ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड सो दैट इट कैन बी एब्जॉर्ब्ड. यू नो दैट आप कॉम्प्लेक्स फूड कंज्यूम करते हो और जब वो कॉम्प्लेक्स फूड सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट होके आपकी बॉडी एब्जॉर्व कर लेती है, उसका ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपलर सब्सटेंस में, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन. Next is absorption. The process of absorbing food in the form of nutrients into the bloodstream means जो भी फूड आपने कंज्यूम किया है इंजेशन के थ्रू, इनटेक किया है फूड का, वो फूड डाइजेस्ट होकर आपकी बॉडी में वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. फोर्थ वन इज एसिमिलेशन.
The process of nutrients being absorbed by each cell of the body in the form of energy. सो जब आपका फूड आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है तो उसके बदले में, उसके रिजल्टेंट में आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है. सो दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन. लास्ट स्टेप इज इजेशन. इजेशन मीन्स होता है बाहर निकालना. मीन्स आपकी बॉडी ने जो अच्छे न्यूट्रिएंट्स थे या गुड प्रोडक्ट था वो एसिमिलेट कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया. बट आप जो भी फूड कंज्यूम करते हो वो पूरा फूड अच्छा नहीं होता है. सो उसमें कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होता है. सो इजेशन इज दैट प्रोसेस बाय विच यू सिक्रेट द वेस्ट और अनवांटेड एंड एक्सेस सब्सटेंस. मीन्स आपकी बॉडी वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देती है. सो दिस इज कॉल्ड इजेशन. Now next topic is different ways of taking food by animals. So different animals use different ways to intake food. We know that organism has consists of two types like unicellular and multicellular. So unicellular organisms such as amoeba, paramecium, and multicellular organisms such as human beings, plants also, and hydra also. So they intake their food or absorb their food by different ways. We will study about that now, okay? First one is amoeba. You know that amoeba has a shape just like your hand, just like your 5 fingers. Okay, so amoeba is a unicellular organism. This engulfs its food in the form of tiny particles. अमीबा अपने फूड को tiny particles के फॉर्म में engulf करता है with the help of its false feet. False feet means pseudopodia. These are pseudopodias. अमीबा में जो स्ट्रक्चर होती है फिंगर्स के जैसी, वही सूडोपोडियाज का वर्क करते हैं. वो फॉल्स फीट होते हैं. फॉल्स मीन्स झूठे पैर, मतलब वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होते रहते हैं. सो जैसे ही कोई फूड का पार्टिकल अमीबा के आसपास आता है, अमीबा के जो फॉल्स फीट हैं या जो सूडोपोडिया जैसी स्ट्रक्चर है ये एक सर्किल की शेप ले लेती है. स्टार्टिंग में तो ये कॉर्नर के जैसा होता है, फिंगर के जैसा होता है, बट धीरे धीरे ये एक सर्कुलर शेप ले लेती है. लुक, these are pseudopodias and now they convert into food vacuole. ये एक फूड वैक्यूल बना लेते हैं, एक स्टमक बना लेते हैं. और जैसे ही वो फूड पार्टिकल इस सूडोपोडिया के अंदर कैप्चर होता है, सूडोपोडियाज एक कैविटी बना लेते हैं, होल बना लेते हैं. दिस इज कॉल्ड फूड वैक्यूल. फूड वैक्यूल में वो जो फूड के टाइनी पार्टिकल्स हैं वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि इसकी सेल वॉल से धीरे धीरे डाइजेस्टिव जूस जो हैं वो सिक्रेट होने लगते हैं. यू कैन सी दिस इज डाइजेस्टिव वॉल. ओके, सो यहाँ से वॉल से डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होने लगते हैं और फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करने में वो हेल्प करते हैं. सो जैसे ही फूड पार्टिकल डाइजेस्ट होता है, दैट फूड एब्जॉर्ब एंड एसिमिलेट बाय द अमीबा. ओके, वो फूड अमीबा यूज़ कर लेता है एंड दिस फूड प्रोवाइड एनर्जी टू द अमीबा. देन लेटर ऑन ये जो फूड वैक्यूल फॉर्म हुआ था ये डिसअपियर हो जाता है, ये गायब हो जाता है. और अगेन जो फूड वैक्यूल सूडोपोडियाज ने बनाया था, इसके फीट ने बनाया था, वो वापस से अपनी जो इनिशियल शेप होती है वही शेप में आ जाता है. वापस से वो फिंगर लाइक शेप में चेंज हो जाता है. सूडोपोडियाज, राइट. सो सेकेंड वन इज हाइड्रा. Amoeba is unicellular organism, but Hydra is a multicellular organism. Means Hydra contains million of cells. Okay, so Hydra जैसे अमीबा में सूडोपोडियाज होते हैं वैसे ही हाइड्रा में टेंटिकल्स होते हैं. ओके, दिस इज हेड ऑफ द हाइड्रा. ये हाइड्रा का माउथ है और माउथ के ऊपर टेंटिकल्स जैसी ये स्ट्रक्चर बनी हुई है, जाल जैसा एक बना हुआ होता है. ओके, सो एज सून एज एनी स्मॉल एक्वेटिक एनिमल या फिर
कोई भी जो फूड होता है, इंसेक्ट होता है, वो जैसे ही इन टेंटिकल्स के अराउंड मूव करता है या इनके आसपास आता है, सो ये टेंटिकल्स उसको कैप्चर कर लेते हैं, उसको फंसा लेते हैं और धीरे धीरे वो उसको मूव डाउन करते रहते हैं हाइड्रा की बॉडी में। ओके, सो जैसे ही फूड हाइड्रा की बॉडी कैविटी में, कैविटी मीन्स होता है स्पेस, ओके, सो जैसे ही वो फूड पार्टिकल्स हाइड्रा की कैविटी में पहुंचता है, जस्ट लाइक दिस, हाइड्रा की कैविटी वॉल से जूस, डाइजेस्टिव जूस निकलना स्टार्ट हो जाता है, सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है और वो उस इंसेक्ट या फिर जो भी फूड है उसमें उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। देन लेटर ऑन फूड जब डाइजेस्ट हो जाता है तो ये जो फूड से एनर्जी मिलती है वो हाइड्रा एसिमिलेट कर लेता है, एब्जॉर्व कर लेता है अपनी ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट इज फ्रॉग। वी ऑल हैव सीन फ्रॉग, ओके, इन रेनी सीजन। सो आपने देखा होगा कि फ्रॉग, जहाँ भी इंसेक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे फ्लाइज होती हैं या फिर मॉस्किटोज़ होते हैं या दूसरे इंसेक्ट होते हैं, फ्रॉग वहीं हॉप करके पहुंच जाते हैं, ओके, उछल उछल कर पहुंच जाते हैं। सो फ्रॉग के पास क्या होता है कि वो अपना फूड कंज्यूम करता है, इनटेक करता है। एक्चुअली फ्रॉग हैज़ लॉन्ग स्टिकी फॉर्क शेप टंग। उसकी एक लंबी और एक फॉक के शेप की, वो अपनी टंग को चेंज कर सकता है फॉक के शेप में, मतलब एक चम्मच के जैसे वो उसको चेंज कर लेता है। ओके, सो जैसे ही कोई इंसेक्ट उसको दिखता है वो अपनी लंबी सी स्टिकी अपनी जीभ को निकाल कर, टंग को निकाल कर उस इंसेक्ट को कैप्चर कर लेता है। ओके, देन वो उसको एनगल्फ कर लेता है, निगल लेता है और फ्रॉग के स्टमक में जो वॉल्स होती हैं वहाँ से डाइजेस्टिव जूस निकलता है और वो इंसेक्ट डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि फ्रॉग के पास वेल डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स के पास होता है। बट अमीबा के पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, बिकॉज अमीबा इज आ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ओके, देन फ्रॉग का फूड एब्जॉर्ब हो जाता है और वो उसको अपनी ग्रोथ और एनर्जी में यूज़ कर लेता है। नेक्स्ट इज स्पाइडर। वी ऑल हैव सीन स्पाइडर वेब। हमने देखा है घरों में जो मकड़ियाँ होती हैं वो स्पाइडर्स, वो जाले बना देती हैं, वेब बना देती हैं। सो आपने कभी ध्यान से देखा हो कि जो स्पाइडर होती है वो उसके सेंटर में रहती है, वेब के सेंटर में। ओके, सो जैसे ही कोई इंसेक्ट उस स्पाइडर वेब में कैप्चर हो जाता है, फंस जाता है, स्पाइडर क्या करती है, एक्चुअली उस इंसेक्ट के सॉफ्ट पार्ट पर स्पाइडर इंजेक्ट करती है। ओके, और वहाँ पर सॉफ्ट पार्ट पर इंजेक्ट करके वो पूरा उसका जो ब्लड है उस इंसेक्ट को वो पूरा सक कर लेती है। ओके, देन इस तरीके से वो अपना फूड डाइजेस्ट कर लेती है। नेक्स्ट इज मॉस्किटो एंड हाउस फ्लाई एंड बटरफ्लाई। So they all are flies, okay, especially they have wings. So जो मॉस्किटो, हाउस फ्लाई एंड बटरफ्लाई होते हैं उनमें एक कॉमन चीज़ होती है, प्रोबोस्किस। आप सभी ने देखा होगा जब मॉस्किटो आपका ब्लड सक करते हैं तो उनकी ट्यूब होती है, हॉलो ट्यूब, बहुत ज़्यादा थिन होती है और नुकीली होती है, आप उसको डंक कह सकते हो। ओके, या फिर आपने देखा होगा बटरफ्लाई को कभी किसी फ्लावर पर वो अपने इसी प्रोबोस्किस से उस फ्लावर का नेक्टार सक करती है। नेक्टार मीन्स फ्रूट जूस, फ्लावर जूस को सक करती है। तो वैसे ही मॉस्किटो एंड बटरफ्लाई और जो फ्लाइज होती हैं वो अपने डंक से अपने फूड को कंज्यूम करती हैं इन लिक्विड फॉर्म। ओके, सो आपने घरों में देखा होगा जो घरों में मक्खियाँ पाई जाती हैं वो कैसे अपने फूड को कंज्यूम करती हैं, वो अपने फूड पर एक सॉल्यूशन को इजेक्ट करती हैं। ओके, और उस सॉल्यूशन में जब वो उसका खाना पूरा मिक्सअप हो जाता है, देन वो उस सॉल्यूशन को दोबारा से सकअप कर लेती हैं अपनी उस फीडिंग ट्यूब से। सिमिलरली बटरफ्लाई भी अपने प्रोबोस्किस से या फिर अपने जो उसका ट्यूबुलर माउथ पार्ट होता है, डंक होता है, उससे फूलों का जूस मीन्स नेक्टार को सक कर लेती है। सो स्टूडेंट्स, वी हैव लर्न टुडे
different steps of digestion in different animals and different ways in different animals. How can different animal consume their food and digest their food? I hope you have learned well. You have understand each and every point. So now I'm going to end this video. If you like this video, then please like my video and subscribe my channel, and please share my video as much as you can share. Okay, please. Thank you.